بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاپان کے ایک سائنسدان ڈاچی فومیو اپنے دفتر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کے کولیگ نے انہیں دیکھا تو وجہ پوچھی۔ ڈائچی نے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس کے کولیگ بڑے حیران ہوئے اور ڈائچی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھی۔ ڈائچی نے کہا کہ میں صرف ایک مکڑی کی وجہ سے مسلمان ہوا ہوں۔ ڈائچی کے یہ الفاظ سن کر اس کے تمام ساتھی حیران رہ گئے کہ ایک مکڑی کی وجہ سے تم مسلمان کیسے اور کیوں کر ہوگے؟ ڈائچی نے کہا کہ پچھلے دنوں میں ایک بک پڑھ رہا تھا جو کہ ایک اسلامی اسکالر کی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اس دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ یہ تحریر پڑھنے کے بعد میرے اندر بے چینی پیدا ہونے لگی۔ میں نے مکڑی کے اوپر مکمل سرچ کرنے کی ٹھان لی۔ مکڑی پر ایک طویل سرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پھر ڈائچی نے لمبی سانس لی اور اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچوں کے والد یعنی نر مکڑی کو قتل کر دیتی ہے؟ سب نے حیران ہو کر کہا کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ پھر ایک ساتھی نے ڈائچی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ جانتے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ مادہ مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد ان بچوں کے باپ کو قتل کیوں کر دیتی ہے؟ ڈائچی نے اپنے ساتھیوں میں ایک عجیب سا تجسس دیکھا، جیسے وہ اس کا جواب سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ اس میں کوئی توراہ نہیں کہ جاپانی لوگ علم کے متلاشی ہوتے ہیں، جدت ٹیکنالوجی کے پیاسے ہوتے ہیں۔ ڈائچی نے کہا، میری لمبی تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی یعنی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کتنا عجیب و غریب اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔ ڈائچی کے یہ الفاظ سن کر اس کے سب ساتھی حیران رہ گئے۔ ڈائچی نے انہیں مزید کہا کہ قرآن مجید کی ایک سورت العنکبوت ہے۔ العنکبوت میں اردو میں مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے بودا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن کا معجزہ دیکھے کہ ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر العنکبوت کا ہے۔ اگر انسان علم رکھتے ہیں تو اس میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ ڈائچی نے کہا کہ ہم سب انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے ہیں، مگر اس کے گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ اب جدید سائنس کی وجہ سے ہم اس کی کمزوری سے واقف ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام اس بری خصلت والے کیڑے کے نام پر رکھا۔ حالانکہ اس سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فطروں کے بارے میں ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہے، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ فرمایا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کے جال کی طرح پیچیدہ ہوتی ہیں، اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا، ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر اللہ مدد کرے تو یہ سائن کچھ بھی نہیں ہوتے۔ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کاش لوگ جانتے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ مکڑی کے گھر کو دیکھ کر جو شخص حقیقت کا سبق پا لے وہی دراصل عالم اور عقل رکھنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک سچے علم والے کون ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں جو کتابی بحثوں کے ماہر ہوتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی دنیا میں پھیلی ہوئی قدرتی نشانیوں نصیحت کی غذا لے سکے۔ سبحان اللہ! بے شک واقعی وہی علم اور عقل والا ہے، وہی نصیحت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے والا ہے، جو اللہ سے ڈرے اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا ہو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ میرا باپ مجھے کراچی کے ایک مشہور انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروانے لے گیا۔ پرنسپل نے میرا انگلش میں انٹرویو لیا۔ اس کے بعد میں ناکام ہوا تو پرنسپل نے میرے والد سے کہا کہ آپ کا بیٹا اس ادارے کے قابل نہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو واپس اپنے گاؤں لے جائیں، اس سے گائیں بھینسوں کے گوبر صاف کروائیں۔ یہ ایک ایسا طنز تھا جس کو سن کر میری آنکھیں لال ہو گئیں۔ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ مجھے داخلہ دے دیجیے، بے شک آپ مجھ سے اسکول کے واش روم تک صاف کروا لیجیے گا، میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میرے باپ کی خواہش ہے کہ میں کسی اچھے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھوں۔ تو پرنسپل نے غصے سے کہا کہ تم لوگ جا سکتے ہو، میرا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ میں نے پرنسپل سے کہا کہ ایک دن ضرور آئے گا جب آپ مجھ سے ملنے کے لیے ترسیں گے۔ پرنسپل یہ سن کر مسکرانے لگا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ واپس اپنے گاؤں لوٹ آیا۔ اس کے بعد گھر کی چھت پر سونا شروع کیا۔ میرا باپ حیران ہوا کہ اس کے بیٹے کو آخر ہوا کیا ہے۔ ایک دن اس نے چھت پر جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ کیمبرج یونیورسٹی کے سب سے کم عمر سائنسدان ڈاکٹر عبدالصمد بلوچ کی داستان، جن کو کراچی کے ایک
स्कूल प्रिंसिपल ने कहा था कि बेहतर यही होगा कि तुम गांव वापस चले जाओ और अपने वालिद साहब के साथ ज़मीनों पर काम करो। पाकिस्तान सूबा बलूचिस्तान के पसमानदा ज़िला के दूर दराज गांव बलीदा के रहायशियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि इनके इलाके के गरीब तबके के ज़मींदार का बेटा खलाई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला साइंसदान और बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट का सबसे कम उम्र सीनियर रिसर्चर, साइंसदान और फेलो होने का एजाज़ हासिल करने वाला है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है जहाँ पर तालीम का कोई ज़्यादा रवाज नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में गिनती के ही चंद लोग होंगे जो ख़त वगैरह पढ़ सकते थे। इसके अलावा ख़त भी कोई नहीं पढ़ सकता था। मेरे वालिद और वालदा ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, मगर बचपन से ही इनकी ख्वाहिश थी कि हम पढ़ लिख जाएं। हम ज़मींदार ज़रूर हैं और ज़मीनें भी काफ़ी थी, मगर हमारी ज़मीनों पर वो पैदावार नहीं होती थी जो होनी चाहिए। चनाचा वालदा मेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या कुछ करती थी, मैं बयान नहीं कर सकता। इससे बढ़कर ये कि वालिद साहब को इकबाल के कुछ अशार याद थे जो वो मुझे और मेरे भाइयों को हर वक्त सुनाया करते थे, जिससे हमारी हिम्मत बन जाती थी। पढ़ाई में हमारी दिलचस्पी को देखते हुए वालिद साहब हमें साथ लेकर कराची के इलाके लियारी पहुंच गए। जब मैं पहली मर्तबा कराची आया तो यकीन करें मुझे ऐसे लगा ये कोई और ही दुनिया है। लोग ट्रैफिक रोशनियां देखकर हैरान ज़दा हो गया। रात के वक्त जलती लाइटें देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी रोशनियों के शहर में पहुंच गया हूँ। लियारी में एक उर्दू मीडियम स्कूल में दाखिला लिया, मगर जल्द ही इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जब तक अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होगी इस वक्त तक तरक्की करना नामुमकिन है। इस सूरत हाल का अंदाज़ा होने के बाद पढ़ने को ठान ली। मैं एक देहाती बच्चा था जो शहरी तरीके को ज़्यादा नहीं जानता था, मगर मेरे पास वालिदैन का दिया हुआ एतमाद, कुछ कर गुजरने का हौसला था। इस मौका पर प्रिंसिपल साहब ने अपने दफ्तर में वालिद साहब की मौजूदगी में मेरा इंटरव्यू लिया। अंग्रेज़ी में ही मुझसे बातचीत शुरू कर दी। हालांकि वालिद साहब ने प्रिंसिपल को पहले बताया था कि ये यहाँ दाखिला लेना इसलिए चाहता है कि इसकी अंग्रेज़ी बेहतर हो जाए। सूरत हाल ये थी कि अंग्रेज़ी तो मुझे आती नहीं थी, मगर समझ लेता था। सबसे पहले अंग्रेज़ी में मेरा नाम पूछा, जिसका मैंने उर्दू में जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि वालिद साहब क्या करते हैं। मैंने बताया कि ज़मीनों में काम करते हैं। इसी तरह उन्होंने कुछ और सवाल पूछे जिसे मैंने कुछ और समझा और कुछ नहीं समझा। शायद इनको उर्दू में मेरा जवाब नागवार गुजरे। फिर कहने लगे, आप अपने बेटे को वापस अपने गांव ले जाएं और ये गाय भैंसों के गोबर साफ़ करेगा, क्योंकि इसकी औकात इस इदारे में पढ़ने की नहीं। मुझे नहीं मालूम कि ये इदारे में टिक पाएगा और आपके बेटे में इतनी अहलियत नहीं है। प्रिंसिपल के अल्फाज सुनकर मेरे वालिद के चेहरे पर परेशानी का एहसास नुमाया था। ये ऐसे अल्फाज थे जिनको सुनकर मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए, जबकि मेरे वालिद मुझसे नज़रें चुरा रहे थे। मैंने बगैर सोचे प्रिंसिपल से कहा कि कुछ अरसे बाद आप मुझसे मिलने को तरसेंगे। मेरी बात सुनकर प्रिंसिपल ने मुस्कुराना शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात थी जो मैंने कही थी, और वो भी बगैर सोचे समझे कह दी, क्योंकि अब मैं सोच लिया था और ठान लिया था कि मुझे तो हौसले और अज़म का सबक सिखाया गया था। मैं वापस अपने बाप के साथ अपने गांव आ गया। मैंने अब्बा जान से कहा कि मैं छत पर ही सोया करूंगा। अब्बा जान हैरान हुए कि इतनी सर्दी में बाहर छत पर कैसे सोएगा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अब नीली छत के नीचे सोया करूंगा। खुले आसमान तले सोना है मुझे। अब्बा जान ने मुझसे पूछा कि बेटा ऐसा क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यूँ खुले आसमान के नीचे क्यों सोना चाहते हो। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा जान प्रिंसिपल की बात अभी तक भूल नहीं पाया। मेरा दम घुट रहा है। आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना चाहता हूँ। मैं इन तारों को महसूस करना चाहता हूँ। मेरी मंजिल इतनी ही दूर है जितने कि ये तारे। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो मंजिल हासिल करके ही रहूँगा। बेटे की बात सुनकर बाप की आंखों में आंसू थे। बाप ने कहा, बेटा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम इस प्रिंसिपल की बातों को दिल पर ना लो, बल्कि हिम्मत और अज़म से अपनी मेहनत जारी रखो। इंशाल्लाह तुझे अपना मुकाम ज़रूर हासिल होगा। ये बात तो जहन नशीन हो गई थी कि अंग्रेज़ी सीखना लाजमी है। लियारी में ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के बैनर्स और पोस्टर लगे थे। मैंने वालिद साहब के से कहा कि मुझे स्कूल में दाखिल करवा दें। अंग्रेज़ी सीखने के लिए मैंने खुद से ही कोशिश शुरू कर दी। कभी अंग्रेज़ी के अखबार पढ़ता, कभी ग्रामर की कोई किताब पढ़ लेता, साथ ही स्कूल के उस्तादों से जो मदद मिलती इससे भी पढ़ाई कर लेता। गो के ये बहुत छोटा सा स्कूल था, लेकिन कुछ उस्ताद इंतहाई मेहनत से पढ़ाया करते थे। जब मैट्रिक के इम्तिहान थे तो लोगों ने मुझे नकल करने की तरगीब दी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए और मेहनत का फल ज़ाया नहीं होता। यही मेरी वालदा की भी मुझे नसीहत थी और हुआ भी यही। मैट्रिक का जब नतीजा आया तो मेरा इवन ग्रेड आया। मैंने
मैट्रिक 2003 में किया था, जबकि इसी साल के आखिर में डीजी साइंस कॉलेज कराची में दाखिला लेने की कोई दिक्कत पेश नहीं आई। माया नाज साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी इसी कॉलेज में पढ़ते थे। एफएससी के दौरान मैं ट्यूशन भी पढ़ता रहा, क्योंकि ज़ाहिर है वालिदैन पर इतना बोझ नहीं डाल सकता था। लेकिन इसकी दूसरी वजह यह भी थी कि मुझे दरसो तदरीस और तहकीक से दिलचस्पी थी। मुझे लगा था कि अगर मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा सीखूंगा, और हुआ भी यही। एफएससी का सिलसिला इसी तरह चलता रहा। जब नतीजा आया तो यहाँ पर भी मैंने A1 ग्रेड हासिल किया। एफएससी के बाद KPK के शहर स्वाबी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस और टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट दिया। तैयारी पूरी थी, चनाचा एंट्री टेस्ट शानदार तरीके से पास किया और 100% स्कॉलरशिप मिला। मेरे भाइयों ने तालीम को अमूमन खैर बात कह दिया था। वो छोटे मोटे काम कर रहे थे जिससे वो हर माह मुझे रकम भेजते। ये रकम मुझ जैसे तालिब इल्म जिसकी सारी तवज्जो तालीम पर थी काफ़ी थी, जबकि यूनिवर्सिटी की तालीम तो स्कॉलरशिप पर थी। मतलब ये कि 7वीं क्लास में कराची आने के बाद जो मसाइल शुरू हुए थे वो एफएससी करने और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद ख़त्म हो चुके थे और कामयाबियों का सफ़र शुरू हो गया था। आज अगर मैं तहकीक से वाबस्ता हूँ तो दर हकीकत ये मुझे गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर फजल अहमद खालिद की तरकीब है और हौसला था कि मैंने यूनिवर्सिटी में ही फैसला कर लिया था कि मुझे तहकीक से वाबस्ता होना है। यूनिवर्सिटी में 2009 में फारिग हुआ और इसी साल एग्रो केमिकल कराची में मुलाजमत शुरू कर दी। 1 साल तक मुलाजमत करता रहा। इसी दौरान तहकीक और आला तालीम के मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और इदारों से राब्ते में रहा, जिसके बाद मुझे जापान, कोरिया, कनाडा, जर्मनी, अमरीका और अबू धाबी से स्कॉलरशिप हुई। MPhil और रिसर्च करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑफ़र खलीफा यूनिवर्सिटी अबू धाबी से मिली, क्योंकि इसके साथ अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी का भी ताउन था। दूसरी बात ये कि रिसर्च के दौरान इनका एजाज़ ये एक अच्छी तनख्वाह जितना था, जिसकी वजह से मैंने कबूल कर लिया। इसके बाद स्कॉलरशिप ही यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो समेत बहुत से आलमी अदारों में रिसर्च की और PIT के दौरान मेरी तहकीक ज़्यादातर ग्राफीन नाम के माहिदे पर थी, जिसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ आलात बनाए जाते हैं। ये रिसर्च बहुत से बैनुल अक़वामी अखबार में शाया हुई। जब मेरी रिसर्च शाया हुई थी तो मुझे अमरीकी अबू धाबी, टोक्यो से मुख्तलिफ ऑफ़र्स आई। मेरी रिसर्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक माया नाज साइंसदान को अच्छी लगी, जिन्होंने मुझे वहाँ जॉब ऑफ़र की। वैसे तो तनख्वाह और मराहत के हिसाब से बेहतरीन ऑफ़र अबू धाबी की थी, लेकिन मेरा मकसद तनख्वाह नहीं था बल्कि अगली मंजिल तक पहुँचना था। चनाचा मैंने यूनिवर्सिटी से आने वाली ऑफ़र्स को कबूल किया, क्योंकि मुझे तहकीक के मैदान में काम करना था। शायद दुनिया भर में तहकीक के हवाले से बेहतरीन सहूलतें और माहौल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही दस्तयाब थे, जहाँ से न्यूटन जैसे साइंसदान मुंसलिक रह चुके थे। 2 साल तक कैम्ब्रिज में रिसर्च साइंसदान की हैसियत से काम करने के बाद मुझे सीनियर रिसर्च साइंसदान की हैसियत से काम करने का मौका मिला। मुझे पता नहीं था, मगर कहा जाता है कि कैम्ब्रिज में रिसर्च साइंसदान से सीनियर साइंसदान का दर्जा हासिल करने के लिए 2 साल बहुत ही कम अरसा है, और मुझे भी यही लगता था कि मैं वहाँ से सबसे कम उम्र सीनियर साइंसदान हूँ। कैम्ब्रिज में जाने के बाद बहुत से यूरोपीय कंपनियों और स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी से मुंसलिक आलात बनाए। इन आलात को टेस्ट करने के लिए वक्तर फ़ोक्तर खलाई जहाज़ और मसनूई सियारे लॉन्च करते हैं, जिनमें पैराबोलिक फ्लाइट, साउंड रॉकेट और देकर स्पेस क्राफ्ट शामिल है। ग्राफीन को पहली मरतबा खला में भी जाने का मौका मिला। मुख्तलिफ तहकीकात भी जारी हैं, जिनमें सीनियर्स के अलावा खला में अगर जिस्म पर ज़ख्म लग जाए तो इसको किस तरह भरा जाए, इस पर भी काम जारी है। इसके अलावा पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए बरतानिया की कुछ तंजीमों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिनमें इसको सेटेलाइट फ्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने मुल्क में जाकर काम करने पर फ़ख्र महसूस करूँगा। ज़िंदगी के इस दौर में और अपनी कामयाबी से मैंने ये सबक सीखा कि लोगों की तनकीद और तंज भरे फ़िक्रे आपके लिए मुफीद साबित होते हैं। ये आप पर मुनहसर है कि आप इनको कैसा जवाब देते हैं। आपका रद्द-ए-अमल कैसा होता है? क्या किसी की तंज या तनकीद से आप मायूस हो जाते हैं, इन फ़िक्रों को दिल पर लेते हैं, या फिर आपको एक नई जहत मिलती है? मुझे इस स्कूल के प्रिंसिपल का एक फ़िक्रा आज भी याद है। प्रिंसिपल साहिब के इस तंज़िया फ़िक्रे के बाद मुझे एक नई ताकत मिली थी, एक नई क़ुव्वत मिली थी। अपने वालिदैन की दुआ की बदौलत और अपनी मेहनत की वजह से मैं ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां पहुंचने के लिए लोग तमन्ना किया करते हैं। और मेरी ज़िंदगी का ये निचोड़ है कि जब भी आप पर कोई तानेबाजी करे या आपका हौसला पस्त करे तो आप अपने काम के ज़रिए इसको जवाब दें, क्योंकि कोई भी शख्स जवाब को कमतर या नफ़रत के काबिल समझता है तो आप अपने काम के ज़रिए बुलंद मकाम पाकर इससे इंतकाम ले सकते हैं, और ये सबसे बढ़िया इंतकाम है। आप भी थी नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।